In today's class, we will read a very interesting as well as instructive story, The Sermon at Banaras. Here, sermon means moral teaching, which is an extract from Values and Vices, a college reader published in 1975 by B.T. Renshaw. Before we start the chapter, let's do second activity. Find out the meanings of the words and phrases given in the box. यहाँ पर दिए गए शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ बताना है. Afflicted with means troubled with pain, कष्ट में होना, troubled with pain. Be composed means calm and in control of your emotions, शांत और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना. Desolation means a feeling of great unhappiness and hopelessness, अवसाद या निराशा. Lamentation means a cry of sorrow and grief, विलाप. Procure means arrange और get by special effort, उपलब्ध कराना. Be subject to means being dependent or conditioned upon something, निर्भर होना, liable to. Students, you try to memorize meanings of above words and phrases. These words and phrases will occur in the lesson. Alright students, now let's start the lesson. Gautam Buddha, who was born in 563 BC before Christ and he died on 483 BC before Christ, began life as a prince named Siddhartha Gautama. गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई. बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा. इन नॉर्दर्न इंडिया में. गौतम बुद्धा who was born in 563 BC and died in 483 BC was born in a royal family of northern India. He was a prince. His name was Siddhartha Gautama. At the age of 12 वर्ष की उम्र में, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. At the age of 12 years, when he was 12 years old, he was sent away for schooling. 12 वर्ष की उम्र में इनको स्कूलिंग के लिए, विद्यालय शिक्षा के लिए भेजा गया. In the Hindu sacred scriptures, sacred holy, HOLY. Scriptures means religious books. And 4 years later, he returned home to marry a princess. और 4 वर्ष बाद ये वापस लौटे और एक प्रिंसेस से, राजकुमारी से विवाह किया. At the age of 12, he was sent to a school to study holy books of Hindu religion. He returned from the school after 4 years. Then he got married to a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. Befitted means appropriate, 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 or suited, SUITED, and royalty means related to kings. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. Means for 10 years they lived as per tradition of royal family. जो रॉयल फैमिली का ट्रेडिशन है, वहाँ की जो परंपरा है,
उस परंपरा के अनुसार ये 10 साल तक रहे महल में। दे हैड अ सन, उनका एक पुत्र भी हुआ। एट अबाउट द एज ऑफ 25 ईयर्स की अवस्था में, 25 साल की उम्र में, द प्रिंस हियरटुफोर मीन्स बिफोर दैट टाइम, उसके पहले, शील्डेड मीन्स प्रोटेक्टेड, PROTECTED, प्रोटेक्टेड, फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। एट अबाउट द एज ऑफ 25 साल की उम्र तक, 25 वर्ष तक राजकुमार को इसके पहले प्रोटेक्ट किया गया था, सुरक्षित रखा गया था, फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो सांसारिक कष्ट हैं, ट्रबल्स और सारोज ऑफ द वर्ल्ड। सफरिंग्स मीन्स ट्रबल्स और सारोज, जो सांसारिक दुख है, उस दुख से, उन दुखों से राजकुमार को दूर रखा गया था। मीन्स लिविंग इन द रॉयल फैमिली, Prince Siddhartha did not have any chance to see or experience problems of the world. While out for hunting, chanced upon means saw by chance, SAW, saw by chance, अचानक इन्होंने देखा, while out for hunting, at the age of about 25, once Prince had gone for hunting, लगभग 25 साल की अवस्था में राजकुमार हंटिंग के लिए गए और उन्होंने अचानक, चांस्ड अपॉन, सॉ बाय चांस, उन्होंने देखा एक सिक मैन को। एट द एज ऑफ अबाउट 25, वंस प्रिंस हैड गॉन फॉर हंटिंग, ही सॉ अ सिक पर्सन, उन्होंने एक सिक पर्सन को देखा, बीमार व्यक्ति को। देन एन एजिड मैन, इसके बाद एजिड मैन को, उम्रदराज व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स पीपल गोइंग फॉर बरियल, जो शव यात्रा के लिए लोग जाते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ अ मैन, पीपल फॉर्म अ प्रोसेशन, दैट इज कॉल्ड फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ डेथ, शव यात्रा। एंड फाइनली अ मॉन्क, और अंत में उन्होंने एक मॉन्क को देखा, होली मैन, एक भिक्षुक को देखा। बेगिंग फॉर आर्म्स, जो आर्म्स मांग रहा था। आर्म्स मनी, फूड एंड क्लोथ्स गिवन टू पुअर पीपल, दैट इज कॉल्ड आर्म्स, भिक्षा। एट द एज ऑफ अबाउट 25, वंस प्रिंस हैड गॉन फॉर हंटिंग, 25 ईयर्स की अवस्था में राजकुमार हंटिंग के लिए बाहर गए और रास्ते में उन्होंने ही सॉ अ सिक पर्सन, उन्होंने एक सिक पर्सन को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, एंड एजिड पर्सन को देखा जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, उम्रदराज। अ फ्यूनरल प्रोसेशन, एक शव यात्रा को देखा, और अंत में उन्होंने, एंड फाइनली ही सॉ अ मॉन्क हु वाज बेगिंग फॉर आर्म्स, अंत में उन्होंने एक भिक्षुक को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था। These sights so moved him means affected him, उन्हें प्रभावित किया। These sights, और इस तरह का राजकुमार ने पहले कभी दृश्य नहीं देखा था, लेकिन इस बार जब उन्होंने इस तरह का दृश्य देखा तो he was very much affected, वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। That he at once went out into the world, उन्होंने तुरंत बाहर जाने का निश्चय किया, संसार को देखने का निश्चय किया। टू सीक इनलाइटनमेंट, टू सीक मीन्स टू फाइंड, प्राप्त करना। इनलाइटनमेंट मीन्स डिवाइन नॉलेज, दैवीय ज्ञान। अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुरंत उन्होंने घर बार छोड़ दिया। कंसर्निंग द सारोज ही हैड विटनेस्ड, और जो सारोज, कंसर्निंग मीन्स रिगार्डिंग, द सारोज सैडनेस, ही हैड विटनेस्ड मीन्स सीन,
जब वो हंटिंग के लिए बाहर गए तो उन्होंने एक सिक मैन को देखा, एजिड मैन को देखा, और इसके बाद उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा, शव यात्रा को, एंड फाइनली एक मॉन्क को देखा। और उन्होंने ये निश्चय किया कि अब हमें इन सभी दुखों का कारण जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, डिवाइन नॉलेज प्राप्त करना है, स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करना है। और इसीलिए उन्होंने अपने ऐशो आराम भरी ज़िंदगी को त्याग दिया और संसार का जो दुख है उस दुख के कारण और निवारण के लिए उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया। द सिंस ऑफ सिक मैन, एजिड मैन, funeral procession and a monk affected him too much, and he at once decided to leave his home. He went to the world outside his home in search of spiritual knowledge regarding the sins of sadness he had seen. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. He vowed to stay until enlightenment came, divine knowledge came. He wandered means roamed here and there, यहाँ वहाँ भटकते रहे, ROAMED, roamed here and there for 7 years, 7 वर्षों तक वह इधर उधर भटकते रहे, and finally sat down under a peepal tree, और अंत में एक पीपल ट्री, a type of tree, पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। where he vowed to stay, vowed to stay means promised to stay, उन्होंने उस स्थान पर उस पीपल ट्री के नीचे रुकने का वादा किया, promised to stay until enlightenment, divine knowledge came. उस पीपल ट्री के नीचे उन्होंने वादा किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह वहीं पर बैठे रहेंगे और ध्यान करते रहेंगे। He roamed to a different places for 7 years. Finally, he sat under a peepal tree. He promised to himself to remain there until he got the spiritual or the ultimate knowledge, or you can say divine knowledge. उन्होंने स्वयं से वादा किया कि वह उस पीपल ट्री के नीचे तब तक बैठे रहेंगे जब तक उन्हें स्पिरिचुअल और द अल्टीमेट नॉलेज, जो डिवाइन नॉलेज है, दैवी ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसी पीपल ट्री के नीचे वो बैठे रहेंगे। ऐसा उन्होंने अपने मन में ठाना, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा किया। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों तक तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उस पीपल ट्री को इन्होंने बोधि ट्री का नाम दिया, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच, बिगेन मीन्स स्टार्टेड टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और जो उन्होंने नई अंडरस्टैंडिंग प्राप्त की थी, नया ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान को लोगों को सिखाने लगे। ही स्टार्टेड टीचिंग एंड शेयरिंग हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. Awakened rose a state of knowledge. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. जागा हुआ या ज्ञान प्राप्त बुद्धा के नाम से वो विख्यात हुए। After 7 days, he understood the spiritual or divine knowledge. 7 दिनों के बाद उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। He gave a new name to the peepal tree as Bodhi tree, और जिस पीपल ट्री के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की थी, उस ट्री का नाम उन्होंने बोधि ट्री रखा। He started teaching and sharing his new understandings, और जो नया ज्ञान उन्होंने दैवी ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को लोगों को सिखाने लगे, उसे शेयर करने लगे। देन ही वॉज कॉल्ड द बुद्धा, और इसके बाद उनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा, जिसका तात्पर्य होता है द पर्सन हैविंग नॉलेज,
awakened or enlightened. Buddha preached his first sermon. Preached means sermonized, sermonised. He delivered his first sermon, religious speech. Sermon means religious or moral talk, religious speech. उन्होंने अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस नामक शहर में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया. मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर. डीपिंग प्लेसेस, बेदिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगीज मीन्स गंगा नदी. दैट sermon has been preserved means protected or saved and is given here. The Buddha gave his first religious speech at the city of Benares. बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक उपदेश बनारस नामक शहर में दिया. इट इज़ द मोस्ट होली स्पेस ऑफ द रिवर गंगीज फॉर टेकिंग अ होली बाथ. और एक बहुत ही होली स्पेस है जहाँ पर गंगा नदी भी है, जहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं. ऐसे स्थान पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया. दैट सरमन, और वह जो रिलीजियस और मॉरल टॉक है, उपदेश है, हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, उसको सुरक्षित रखा गया है, प्रोटेक्टेड, एंड इज़ गिवन हियर, और वो उपदेश यहाँ पर दिया हुआ है. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, और ये रिफ्लेक्ट करता है, एक्सप्लेन करता है. इट एक्सप्लेन्स द बुद्धाज विजडम, बुद्धा की विजडम को, उनके विवेक को. प्रूडेंस, विजडम मीन्स प्रूडेंस, PRUDENCE. अबाउट वन inscrutable, inscrutable means something which cannot be understood, वो चीज़ जिसे समझा नहीं जा सकता. something which cannot be understood, और another meaning not easily understood, जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. और ये जो उपदेश है वो बुद्धा के विजडम को, उनके विवेक को एक्सप्लेन करता है, उस दुख के बारे में जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता. अबाउट वन inscrutable kind of suffering. This sermon explains wisdom of Buddha about a type of pain, about a type of suffering that cannot be easily understood. Kisa Gotami had an only son and he died. Kisa Gotami का एक ही पुत्र था. Kisa Gotami had an only son, only means single, and he died. Kisa Gotami had only one son, her son died. उसका एक ही बेटा था, एक ही सन था, और उसकी मृत्यु हो गई. इन हर ग्रीफ, और अपने दुख में उस बेटे की मृत्यु का जो उन्हें दुख था, उस दुख में शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स. नेबर्स मीन्स पर्सन्स ड्वेलिंग बिसाइड, जो पड़ोसी थे उन पड़ोसियों के पास. इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड, अपने मरे हुए बच्चे को अपने पड़ोसियों के पास लेकर के वो आई. आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उन पड़ोसियों से वह मेडिसिन मांगने लगी, दवा मांगने लगी. एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस. लॉस्ट हर सेंसेस मीन्स बिकेम मैड और लॉस्ट कॉन्शसनेस. पड़ोसियों को ऐसा लगा कि ये महिला अपनी चेतना को खो चुकी है. शी हैज़ बिकम मैड, शी हैज़ लॉस्ट हर कॉन्शसनेस. द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है, फिर भी उसे जिंदा करने की बात कर रही है, उसके लिए दवा मांग रही है. शी इज़ आस्किंग फॉर मेडिसिन दो हर चाइल्ड इज डेड, यद्यपि उसका लड़का मर चुका है, फिर भी वो दवा मांग रही है जिससे कि उसका बच्चा जीवित हो जाए. आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन, Kisa Gotami became very sad. She carried the dead child to her neighbors
She requested them to give some medicine so that her son becomes alive. उसने अपने पड़ोसियों से रिक्वेस्ट किया कि कुछ उसे मेडिसिन दे दें, कुछ ऐसी दवा दे दें जिससे कि उसका मरा हुआ बच्चा जीवित हो जाए. The people said that she had become mad. लोगों ने कहा कि वह पागल हो गई है, because medicine cannot make a dead person alive. क्योंकि कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है जो कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सके. At length, Kisa Gotami met a man who replied to her request. At length means after a long time. काफ़ी समय बाद किसा गोतमी met a man. किसा गोतमी एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने उसे बताया, who replied to her request. उसकी जो प्रार्थना थी उस प्रार्थना के परिप्रेक्ष्य में उसने आंसर दिया. I cannot give thee means you medicine for thy child, for your child, but I know a physician, I know a doctor who can. उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे इस मरे बच्चे को जिंदा करने के लिए दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर को, फिजिशियन को जानता हूँ जो उसे जिंदा कर सकता है. After a long time, after meeting many people, Kisa Gotami met a person who gave a suggestion to her. The man told that he could not give medicine for her child, but he knew a physician, a doctor who could give medicine. And the girl said, और किसा गोतमी ने कहा, pray tell me, please tell me, sir, who is it? वो कौन है? कृपया मुझे बताइए. किसा गोतमी requested the man to tell the name of that doctor. And the man replied, और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, Go to साक्य मुनि द बुद्धा. तुम साक्य मुनि एक टाइटल है बुद्धा की. साक्य मुनि इज द टाइटल ऑफ बुद्धा. गो टू साक्य मुनि द बुद्धा. आप बुद्ध के पास जाइए, वही आपके डेड चाइल्ड को अलाइव कर सकते हैं, मरे हुए बच्चे को जिला सकते हैं. आपके प्रश्नों का उन्हीं के पास जवाब मिल सकता है. The man told her to meet Sakyamuni, the Buddha. Kisa Gotami repaired to Buddha and cried. Kisa Gotami repaired means went to or visited. बुद्ध के पास गई और रोने लगी. Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. मेरे मालिक, मुझे एक ऐसी दवा दीजिए जो मेरे बच्चे का इलाज कर सके. She started crying. She requested Buddha to give medicine to her son to make him alive again. The Buddha answered. बुद्ध ने उत्तर दिया, I want a handful of mustard seeds. Handful means small quantity. एक मुट्ठी भर मुझे मस्टर्ड सीड्स चाहिए, सरसों के बीज चाहिए. And when the girl in her joy promised to procure means arrange or get by special effort or bring, उपलब्ध कराना. और जैसे ही किसा गौतमी ने ये बात सुनी कि गौतम बुद्ध उसके मरे हुए बच्चे को जिंदा करने के लिए मात्र एक मुट्ठी भर सरसों का बीज मांग रहे हैं, इस बात से वह बहुत खुश हुई. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added. और जैसे ही किसा गौतमी ने कहा कि ठीक है, मैं एक मुट्ठी भर सरसों के बीज उपलब्ध करा दूंगी, गौतम बुद्ध ने और आगे कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन. जो सरसों का बीज तुम लाओगी वो अवश्य उस घर से लाए जाने हैं, फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड. जहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने अपने बच्चे को न खोया हो. हस्बैंड को, पेरेंट माता पिता, और फ्रेंड या मित्र को. अर्थात सरसों का बीज उस घर से लाना है जिस घर में न तो किसी बच्चे की मृत्यु हुई हो, न ही किसी के पति की मृत्यु हुई हो, न ही किसी के माता पिता की मृत्यु हुई हो, और न ही किसी मित्र की.
Buddha said that mustard seeds should be brought from a house where death has not occurred in any of their relation or friends. Poor Kisa Gotami now went from house to house. Helpless, असहाय किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर पर गई. पुअर किसा गौतमी वेंट फ्रॉम वन हाउस टू अनदर एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, लोगों ने उसके ऊपर दया दिखाई. द पीपल एक्सप्रेस्ड देयर सिंपैथी टू हर एंड सेड, और लोगों ने कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये मस्टर्ड सीड है, टेक इट, इसे ले लो. बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब किसा गौतमी ने पूछा, डिड ए सन और ए डॉटर, अ फादर, अ मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या आपके परिवार में किसी पुत्र की, किसी डॉटर की, पुत्री की, या पिता की या माता की मृत्यु तो नहीं हुई है. दे आंसर्ड हर, तो लोग उसे उत्तर देते, अलास, दुख है. द लिविंग आर फ्यू, जीवित कम है. बट द डेड आर मेनी, लेकिन जो डेड हैं अर्थात मरने वालों की संख्या वो अधिक है. पुअर किसा गौतमी, हेल्पलेस किसा गौतमी वेंट फ्रॉम वन हाउस टू अनदर. पीपल एक्सप्रेस्ड देयर सिंपैथी टू हर and gave her some mustard seeds. She asked them if anyone has died in their family. They said that many people have died in their family. Number of dead people are more than number of alive people. जीवित की संख्या कम है अपेक्षाकृत डेड के, मरे हुए व्यक्तियों के. Do not remind us of our deepest grief. और लोगों ने कहा कि हमारे उस गहरे दुख को, डीपेस्ट ग्रीफ को, सारों को पुनः याद मत दिलाओ. एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट. कोई भी ऐसा घर नहीं बचा था जिसमें कि कोई बिलव्ड वन, कोई लव्ड वंस की डेथ न हुई हो, किसी प्रिय की डेथ न हुई हो. पीपल रिक्वेस्टेड किसा गौतमी not to remind them of their pain of losing their family members. There was no house where no one had died. Kisa Gotami became weary and hopeless. Kisa Gotami tired हो गई, weary हो गई और hopeless हो गई, without hope, निराश हो गई. And sat down at the wayside, और रास्ते के किनारे बैठ गई. Watching the lights of the city, जो सिटी की लाइट थी, प्रकाश, उस प्रकाश को देखते हुए. एज दे फ्लिकर्ड अप, फ्लिकर मीन्स टिमटिमाना, अ मोमेंट्री फ्लैश ऑफ लाइट, जो क्षणिक प्रकाश है. एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, एक्सटिंग्विश्ड मीन्स पुट आउट और स्विच्ड ऑफ. किसा गौतमी ने स्ट्रीट लाइट्स को देखा जो कभी फ्लिकर कर रही थी और कभी एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझ जाती थी. एट लास्ट फाइनली द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और जब वह प्रकाश समाप्त हो जाता अर्थात जो लाइट फ्लिकर कर रही थी वो बुझ जाती थी, तो पूरे वातावरण में अंधेरा छा जाता था. द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड means ruled और spread, SPREAD, everywhere, हर जगह अंधेरा छा जाता था. किसा गौतमी could not find a house where no one had died. किसा गौतमी को कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो. She became very tired and hopeless. वह बहुत टायर्ड हो गई और होपलेस हो गई. She sat on the side of a road, और एक सड़क के किनारे बैठ गई. शी वॉच्ड लाइट्स ऑफ सिटी, जो सिटी की लाइट्स थी उनको वह देख रही थी. लाइट्स बिकेम ब्राइटर, कभी प्रकाश ब्राइटर होता था. एंड देन गॉट स्विच्ड ऑफ अगेन, और फिर बुझ जाता था.
At last, the darkness of the night reigned, spread everywhere. Finally, the darkness of the night had spread everywhere. और हर जगह अंधेरा छा जाता था. And she considered the fate of men. Fate, destiny, भाग्य. कीसा गोतमी considered destiny of mankind. उसने मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचा. That their lives flicker up and are extinguished again. ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि उसने सिटी लाइट्स को देखा फ्लिकर करते हुए और एक्सटिंग्विश होते हुए, बुझते हुए, उसी प्रकार से मनुष्य का भाग्य है. फेट ऑफ मैन, मैनकाइंड की डेस्टिनी है. दैट देयर लाइफ्स फ्लिकर अप, कि उनका जो जीवन है उस प्रकाश की भांति टिमटिमाता है. एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर बुझ जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है. कीसा गोतमी कंसिडर्ड डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड. देयर लाइफ स्टार्ट्स, ग्रोज एंड द लाइफ एंड्स अगेन. जीवन का प्रारंभ होता है, इंसान का जन्म होता है, वह बड़ा होता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका अंत हो जाता है. Now she understood that she had become selfish in her grief, and she thought to herself, उसने अपने आप से सोचा, how selfish am I in my grief, कि मैं अपने ग्रीफ में कितनी सेल्फिश हो गई. सेल्फिश मीन्स चीफली कंसर्न्ड विथ वन सेल्फ. जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसे कहते हैं स्वार्थी. तो कीसा गोतमी भी अपने आप से कह रही है कि मैं कितनी स्वार्थी थी. हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख को लेकर कितनी स्वार्थी हो गई. डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबके लिए है, सबके साथ ऐसा होता है. जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है. डेथ इज कॉमन टू ऑल. येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, Valley of desolation means an area which is filled with deep sorrow. गहरा दुख. There is a path, एक ऐसा रास्ता है, that leads him to immortality, जो उसे immortality की तरफ ले जाता है. Immortality means that never dies, जो अमर होता है, कभी नहीं मरता. Not subject to death. Who has surrendered all selfishness, वह व्यक्ति जिसने अपनी सभी स्वार्थपरता को, सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दिया हो. सरेंडर्ड मीन्स गिवन अप. हु हैज गिवन अप ऑल हिज सेल्फिशनेस, वह व्यक्ति अमरता की ओर आगे बढ़ता है जिसने अपने समस्त प्रकार के स्वार्थपरता को सरेंडर कर दिया हो, छोड़ दिया हो. कीसा गोतमी कंसिडर्ड डेस्टिनी ऑफ मैन. Their life starts, grows, and the life ends again. Now she understood that she had become selfish in her grief. Death is common to all. मृत्यु तो सभी की होनी है. Everybody will die someday. In this world of sadness, one who gives up selfishness can live for forever in memory of people. जो व्यक्ति अपने स्वार्थपरता को सरेंडर कर देगा वह आने वाली पीढ़ी के दिलों में हमेशा अपनी जगह बनाए रखेगा. सच पीपल कैन लिव फॉर एवर इन मेमोरी ऑफ पीपल. और ऐसे लोग जो निस्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, अपने स्वयं के दुखों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि संसार का दुख अपना दुख समझते हैं, ऐसे लोग हमेशा आने वाली पीढ़ी के दिलो दिमाग में बसे होते हैं. द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड. मॉर्टल्स कौन है? दोज हु बाउंड टू डाई, जिनकी मृत्यु होती है. मॉर्टल्स नश्वर, सब्जेक्ट टू डेथ. द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन. बुद्ध ने ये बात कही कि जो मॉर्टल्स का जीवन है, लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, हम सभी मनुष्यों का जो जीवन है इस संसार में, इस ट्रबल्ड, वह कष्टकारी भी है, और ब्रीफ है, संक्षिप्त है,
एंड कंबाइंड विथ पेन, और उसमें दर्द भी जुड़ा हुआ है। बुद्धा सेड दैट लाइफ ऑफ एवरी लिविंग बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रबल, शॉर्ट एंड फुल ऑफ पेन। हर व्यक्ति के जीवन में दुख का आना निश्चित है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, उसका जीवन संक्षिप्त है और फुल ऑफ पेन, दुखों से भरा है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच, क्योंकि कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसके तहत दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, कि जिनका जन्म हुआ है वो मृत्यु से बच सकें। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज के बाद देयर इज डेथ, मृत्यु का आना निश्चित है। मीन्स हुएवर इज बोर्न विल डाई वन डे, जो भी जन्म लिया है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और इसी तरह का स्वभाव है हर लिविंग बींग्स का, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी का जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। Buddha said that life of every living being in this world is full of trouble, short and full of pain, because there is no method by which a living being can avoid death. It is natural for every living being to die after becoming old. बूढ़ा होने के बाद, वृद्ध होने के बाद मृत्यु निश्चित है। Every living being is of this nature, और जो भी जीवित प्राणी है इस संसार में सबका इसी तरह का अंत होता है, जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। दिस इज द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड, और यही संसार का नियम भी है कि जो भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस प्रकार से राइप फ्रूट्स, मैच्योर्ड फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस प्रकार से पके हुए फल हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं उन्हें गिरना न पड़े, कहीं वो गिर न जाएं, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। उसी तरह से मॉर्टल्स भी हैं, मनुष्य भी हैं, मैनकाइंड भी है, जन्म के बाद उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उनकी डेथ न हो जाए। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, so mortals when born are always in danger of death. As all earthen vessels made by the potter, vessels containers, जितने भी मिट्टी के कंटेनर्स होते हैं, बर्तन होते हैं, made by the potter, जो पॉटर के द्वारा, one who makes earthen pots, जो पॉटर के द्वारा बनाए जाते हैं, end in being broken, उन सभी बर्तनों का अंत टूट कर ही होता है, अर्थात अंत में वे सभी पॉट्स, वेसल्स, कंटेनर्स टूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, और इसी तरह से मनुष्य का भी जीवन है। एवरी पॉट ऑफ क्ले मेड बाय पॉटर फाइनली ब्रेक्स समडे और द अदर, सेम इज द लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स। कुम्हार के द्वारा बनाए गए बर्तन का अंत टूटने से ही होता है, अंत में वो सभी बर्तन टूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम सभी मनुष्यों का जीवन है, जन्म के साथ साथ मृत्यु भी सुनिश्चित है। हुएवर इज बोर्न विल डाई वन डे। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो यंग हो या एडल्ट हो, बोथ दोज हु आर फूल्स, चाहे वो मूर्ख हो, एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो व्यक्ति बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी का अंत मृत्यु से ही होता है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, ऑल आर लायबल टू डाई। मीन्स एवरी यंग एंड अडल्ट, फुल एंड वाइज, ऑल विल डाई वन डे। एक दिन हर व्यक्ति की मृत्यु होनी है, चाहे वो एडल्ट हो, मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, चाहे वो यंग हो, सबकी मृत्यु निश्चित है। Of those who overcome by death, overcome means control or defeat, depart from life,
A father cannot save his son, nor kinsman their relations. Kinsman means relatives, their relations. Means those who die move away from life. जिनकी मृत्यु हो जाती है वो जीवन से दूर चले जाते हैं. Move away from life. A father cannot save life of his son. पिता अपने पुत्र का जीवन नहीं बचा सकता. And a relative cannot prevent death of another relative. और कोई भी संबंधी रिलेटिव किसी अन्य रिलेटिव का जीवन नहीं बचा सकता. A father cannot save life of his son and a relative cannot prevent death of another relative. Mark, while relatives are looking on and lamenting. Lamenting means feeling sad or expressing sorrow. Mark, while relatives are looking on and lamenting. Please note that while relatives are watching and expressing sorrow. जब संबंधी लोग देख रहे होते हैं और अपने sorrow को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. Deeply, one by one mortals are carried off. One by one, every living being is carried away by death. मृत्यु के द्वारा एक एक करके हर लिविंग बीइंग को अपने पास मृत्यु ले जाती है. लाइक एन ऑक्स, एक ऑक्स जैसा, जैसे कि किसी बैल को, ऑक्स को, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिसको मैसेकर के लिए MASSACRE, मैसेकर, मारने के लिए किसी बैल को किसी बूचड़ खाने में ले जाया जाता है. ठीक उसी प्रकार से मृत्यु भी एक एक करके, चाहे आप जितना भी रोते बिलखते रहें, जितना भी दुख प्रकट करें, पर मृत्यु से आप नहीं बच सकते. जीवन का अंत मृत्यु है. सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ मीन्स अफेक्टेड बाय सफरिंग, कष्ट से प्रभावित, डिजीज, बीमारी या दुख. अफेक्टेड with means affected by suffering, disease or pain. So the world is afflicted with death and decay. Decay, you know, ruin, RUIN, or destruction, 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 vinash. So the world is afflicted with death and decay. Means the complete world is affected by death and damage. पूरा का पूरा संसार डेथ और डीके, डैमेज, डिस्ट्रक्शन से अफेक्टेड है, प्रभावित है. देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव. इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे दुख नहीं प्रकट करना चाहिए. देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव. देयरफॉर वाइज पीपल डू नॉट बिकम सैड. नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड. जो टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड है, नेचर और कंडीशन ऑफ वर्ल्ड है, संसार की जो प्रकृति है, उस प्रकृति को जानते हुए भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे दुख प्रकट नहीं करना चाहिए. देयरफॉर वाइज पीपल डू नॉट बिकम सैड बिकॉज दे नो द नेचर ऑफ द वर्ल्ड. बुद्धिमान व्यक्ति दुख प्रकट नहीं करते, किसी की मृत्यु पर वे दुखी नहीं होते, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. एंड सच वाइज पीपल नो द नेचर ऑफ द वर्ल्ड. और इस तरह के जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे संसार की जो प्रकृति है, अर्थात जन्म के साथ मृत्यु सुनिश्चित है, इस तथ्य को बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी तरह से समझता है और वह दुख प्रकट नहीं करता. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. नॉट फ्रॉम वीपिंग, न तो रोने से, नॉर नहीं, फ्रॉम ग्रीविंग, दुख प्रकट करने से. विल एनीवन ऑब्टेन मीन्स गेट पीस ऑफ माइंड. कोई भी व्यक्ति रोने से या दुख प्रकट करने से मानसिक शांति नहीं प्राप्त कर सकता. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंस्टेड, इन अपोजिशन टू, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दर्द, दुख और बढ़ जाएगा. एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका शरीर कष्ट में होगा.
गौतम बुद्ध ने यहाँ पर जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। नोबडी विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड बाय बिकमिंग सैड और वीपिंग। रोने धोने से, उदास होने से, दुखी होने से व्यक्ति मानसिक शांति नहीं प्राप्त कर सकता। इंस्टेड हिज पेन विल इंक्रीज, इसके बजाय उसका दर्द, दुख और बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल आल्सो सफ़र, और उसका शरीर भी कष्ट में रहेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, खुद को वह कमज़ोर बना लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, और उसके विलाप से, एक्सप्रेशन ऑफ सारो से, लैमेंटेशन मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ सारो, दुख के प्रकटीकरण से, एक्सप्रेशन से, जो डेड हैं, जो मर गए हैं, वो कभी बचाए नहीं जा सकते, उनको दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता। Nobody will obtain peace of mind by becoming sad or weeping. Instead, his pain will increase and his body will also suffer. He will make himself sick and weak, but the dead person will not become alive by his sadness. He who seeks peace would draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who seeks peace, जो व्यक्ति शांति की तलाश करता है, शुड ड्रॉ आउट, उसे टेक आउट करना चाहिए, पुल आउट करना चाहिए, एरो ऑफ लैमेंटेशन एंड कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स टू से समथिंग इन अगेंस्ट, किसी के खिलाफ कोई बात कहना, शिकायत करना। एंड ग्रीफ मीन्स वन हु वांट्स टू लिव इन पीस, जो व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, शुड कीप अवे फ्रॉम सैडनेस, कंप्लेंट एंड सारो, उसे उदासी से, शिकायत से, कंप्लेंट से और सारो, दुख से दूर रहना चाहिए। ही शुड कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम सैडनेस, कंप्लेंट एंड सारो। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज्ड मीन्स, composed means at peace, P-E-A-C-E, at peace, or calm, C-A-L-M, will obtain peace of mind. Means one who has removed these emotions from his life, जिस व्यक्ति ने इन सभी उदासी, शिकायत और दुख की भावनाओं को अपने से रिमूव कर दिया है, he will become calm एंड ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वह व्यक्ति काम होगा, शांत होगा और ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और मानसिक शांति भी उसे प्राप्त होगी। ही हु हैज ओवरकम ऑल सारो विल बिकम फ्री फ्रॉम सारो एंड बी ब्लेस्ड। मीन्स वन हु हैज ओवरकम सारो, जिसने दुख पर विजय प्राप्त कर ली, विल बिकम फ्री फ्रॉम सारो, वह दुख से फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड मीन्स गॉड वुड ऑलवेज ब्लेस सच पर्सन, ऐसे लोगों को ईश्वर भी ब्लेस करता है, उन्हें वरदान देता है। द पीपल हु हैव ओवरकम ऑल देयर सारोज विल बिकम फ्री फ्रॉम सारो एंड बी ब्लेस्ड। Alright students, I think it's enough for today's class. For question answers, you may log on to my blog. The link is given in the video description box. Thank you. Have a great day.